Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about the splanchnic circulation and hepatic portal circulation. Splanchnic circulation is the circulation of blood from the heart to visceral organs and from the visceral organs to the liver, from the liver back to the heart is called splanchnic circulation. Splanchnic circulation is actually the circulation of blood from the heart to the visceral organs, from the visceral organ to the liver, and from the liver back to the heart is called splanchnic circulation. About the hepatic portal circulation we will learn later. Okay, in the diagram you can see the heart. This is heart. From the heart aorta arise. This is the ascending aorta or aortic arc and descending aorta. From the descending aorta you can see that the trunk arise. This is the trunk. This is the celiac trunk. Celiac trunk actually provide the blood to the gastric, to the stomach, to the spleen and to the liver. In the second slide you can see this is the diagram of this is the diagram which is in the background of the splanchnic circulation. This is heart. From the heart aorta arise, and from the aorta the celiac trunk arise. The celiac trunk provide blood to the stomach, to the spleen and to the liver. Later on the descending aorta also provide blood to the small intestine through the superior mesenteric artery. This is superior mesenteric artery, and this provide blood to the small intestine and some parts of the body. Later on the descending aorta also provide blood to the large intestine, large part of the large intestine, some other parts also, but it majorly or prominently provide blood to the large intestine through the inferior mesenteric artery. This is inferior mesenteric artery. This is superior mesenteric artery. This is celiac trunk. This is superior mesenteric artery, and this is inferior mesenteric artery. Let's go to the next slide. Now you can see that this is this is descending aorta. In the descending aorta, this is the celiac trunk. This is superior mesenteric artery. This is inferior mesenteric artery, and you can also see in the green color that from the small intestine a blood vessel arise. Also from the spleen another blood vessel arise. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन किस्म के कलर से मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है. उसमें जो रेड कलर है ये वो है जो आर्टरीज है आपके पास. ये सारे आर्टरीज हैं आपके पास. ये अयोटा है जो सबसे बड़ी आर्टरी है. ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है. ये सीलिक ट्रंक है और ये गैस्ट्रिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी एंड हेपेटिक आर्टरी. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वेन निकला है. दिस is called superior mesenteric vein. This is called superior mesenteric vein. This is called superior mesenteric vein. और यहाँ पे spleen से एक vein arise हो गया है. ये जो green color पे मैंने बनाया हुआ है this is vein, this is not artery. So spleen से जो vein निकला हुआ है this is called splenic vein. Simple. This is splenic vein and this is superior mesenteric vein. तो स्प्लीनिक वेन जो है ये मेजरली नॉट एब्सोल्युटली इट मेजरली ड्रेन ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड को ड्रेन करती है, ब्लड को खींचती है, ब्लड को ट्रांसफर करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. अच्छा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एराइज हो गया है और हमारे पास स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन एराइज हो गया है. द स्प्लीनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन कंबाइन टुगेदर टू मेक अनदर वेन. दिस वेन इज कॉल्ड. अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता चलूं. आपके पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन हो गया, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन. इससे पहले जो नेम मैंने बताया वो मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था. सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन
which drain blood from this. This is superior mesenteric vein. This from the small intestine, majorly from the small intestine. This is splenic vein. Splenic vein. Not this one. अच्छा, and this one, ये जो है splenic vein और superior mesenteric vein combined together to make the hepatic portal vein. This is hepatic portal vein. This one, this is hepatic portal vein. This is the most important vein. Hepatic portal vein. अच्छा, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये आप पूरे कोर्स में, पूरे प्रोग्राम में, पूरे फॉर्म डी में आप ये वर्ड बार बार सुनेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट वेन है आपके बॉडी में. अच्छा, दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन. ये हेपेटिक पोर्टल वेन है जो फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होके लीवर से जहाँ मिलता है लीवर में चला जाता है. ठीक हो गया यहाँ पे. अच्छा, एक्चुअली पोर्टल वेन किसे बोलते हैं? इसको आप सिंपल पोर्टल वेन भी बोल सकते हैं. इसको आप सिंपल पोर्टल वेन भी बोल सकते हैं. इसको आप हेपेटिक पोर्टल वेन भी बोल सकते हैं और पोर्टल वेन भी बोल सकते हैं. लेकिन इसको आप हेपेटिक वेन कभी भी नहीं बोल सकते. इसको हेपेटिक वेन बोलना एक ब्लेंडर कंसिडर होगा. इसको आप हेपेटिक पोर्टल वेन या बोलेंगे या सिर्फ पोर्टल वेन बोलेंगे. और पोर्टल वेन उसी वेन को आप बोलते हैं हर जगह पे. आपके पूरे बॉडी में बहुत सारी जगह पे पोर्टल वेन है और पोर्टल वेन हर उस वेन को आप बोलेंगे, जो हर उस ब्लड वेसल को बोलेंगे जहाँ पे वेन एक मरतबा कैपिलरीज से जा मिलता है. वेन का एक सिरा भी कैपिलरीज से जा मिलता है और दूसरा सिरा भी कैपिलरीज से जा मिलता है. उसको आप पोर्टल वेन बोलते हैं. इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपके पास स्प्लीन है. स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे कैपिलरीज कंबाइन होके यहाँ पे ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन बनाती है. तो इसी पोर्टल वेन का एक सिरा यहाँ पे कैपिलरीज पे एंड होता है और इसी पोर्टल वेन का दूसरा सिरा यहाँ पे कैपिलरीज पे एंड होता है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पोर्टल वेन. पोर्टल वेन हर उस वेन को आप कहेंगे जिसके 2 सिरे कैपिलरीज से जा मिलते हैं. ठीक हो गया यहाँ पे, जिसके 2 सिरे. तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, इसका एक सिरा यहाँ पे कैपिलरीज से जा मिलता है और इसका दूसरा सिरा यहाँ पे कैपिलरीज से जा मिलता है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वेन. अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेपेटिक पोर्टल वेन किस चीज ने बनाया हुआ है. हेपेटिक पोर्टल वेन इज कंप्राइज्ड ऑफ दिस स्प्लीनिक वेन एंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. ठीक हो गया. लेकिन यहाँ पे एक तीसरा वेन भी इसी स्प्लीनिक वेन से मिला हुआ है. स्प्लीनिक वेन से दिस वेन, this is called inferior mesenteric artery. This is called inferior mesenteric vein. Inferior mesenteric vein. ठीक हो गया. अच्छा, inferior mesenteric vein मेजरली आपके लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड ड्रेन करती है. कहाँ पे ड्रेन करती है? स्प्लीनिक वेन में. ठीक हो गया. ये डायरेक्टली हेपेटिक पोर्टल वेन से नहीं जा मिलती. डायरेक्टली हेपेटिक पोर्टल वेन से सिर्फ स्प्लीनिक वेन जा मिलता है और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जा मिलता है. ये इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन जा मिलता है कहाँ पे? यहाँ पे स्प्लीनिक वेन के साथ जा मिलता है. सो यू कैन सी दैट द हेपेटिक पोर्टल वेन रिसीव ब्लड फ्रॉम द splenic vein and in superior mesenteric vein. It also receive blood from the inferior mesenteric vein, but this is indirectly. This is directly. अच्छा, तो inferior mesenteric vein जो मेजरली लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड ड्रेन करती है आपके स्प्लीनिक वेन में, वो यहाँ पे स्प्लीनिक वेन के साथ कनेक्ट हो गया है. अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ऑर्गन्स यहाँ पे मैंने मजीद बनाए हुए हैं. 2 ऑर्गन्स का इजाफा यहाँ पे मैंने किया हुआ है और वो 2 ऑर्गन जो है यहाँ पे ये ऑर्गन है और एक ये ऑर्गन है. अच्छा, दिस इज सिंपल. दिस इज गॉल ब्लैडर. दिस इज गॉल ब्लैडर.
और गाल ब्लेडर से भी कुछ ब्लड वेसल गए हुए हैं, कुछ ब्लड ड्रेन होता है, कुछ वेन ड्रेन करते हैं ब्लड। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल ब्लड ड्रेन करता है लीवर में, तो वो कौन सा ब्लड वेसल होगा? इस ब्लड वेसल को हम बोलेंगे सिस्टिक वेन। इसको हम बोलेंगे सिस्टिक वेन। अच्छा, द सिस्टिक वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द gallbladder to the right branch of the hepatic portal vein। हेपेटिक पोर्टल वेन के राइट ब्रांच के साथ ये जा मिलता है। क्या जा मिलता है? सिस्टिक वेन। सिस्टिक वेन, सो सिस्टिक वेन इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पोर्टल सर्कुलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज पैंक्रियाज। कुछ लोग इसको पैंक्रीज भी बोलते हैं। दिस इज अ प्रॉपर नेम, यू कैन आल्सो कॉल इट पैंक्रीज। अच्छा, तो पैंक्रीज जो है या पैंक्रियाज जो है, यहाँ से भी ब्लड ड्रेन होता है एक ब्लड वेसल के जरिए, जिसको हम पैंक्रियाटिक वेन बोलते हैं। सो पैंक्रियाटिक वेन इज आल्सो कनेक्टेड विद द स्प्लीनिक वेन। पैंक्रियाटिक वेन भी स्प्लीनिक वेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि यहाँ तक हम समझ गए कि ये जो आपके पास डिसेंडिंग अयोटा है, डिसेंडिंग अयोटा से बहुत सारे ब्लड वेसल, बहुत सारे आर्टरीज एराइज हो गए हैं। सीलिक ट्रंक एराइज हो गया है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एराइज हो गया है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एराइज हो गई है। तो ये जब इन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो इन ऑर्गन्स से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वापस आएगी। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगी? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के जरिए वापस जाएगी। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है या सुपीरियर वेना केवा में या इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्टली चला जाता है। लेकिन हमारे ये जो विसरल ऑर्गन है, ये ऑर्गन्स, ये सारे विसरल ऑर्गन्स में आते हैं। जो आपके पास एब्डोमिनल केविटी में और चेस्ट केविटी में ऑर्गन है, उनको हम विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो ये ऑर्गन जो है ये डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा से नहीं जा मिलता। ये किस चीज के साथ जा मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ड्रेन ब्लड टू द लीवर। ये सबसे पहले लीवर में ब्लड ड्रेन करेगी, फिर उसके बाद हार्ट में जाएगी। तो यहाँ पे ये क्यों है, इसमें लॉजिक क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि जितने भी ऑर्गन है, ये पेंक्रियाज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सारे ऑर्गन से, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्प्लीन है। अच्छा, ये जो गैस्ट्रिक है, ये जो यहाँ से भी एक आर्टरी, यहाँ से भी एक वेन एराइज हो गया है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक वेन। गैस्ट्रिक वेन भी इसी स्प्लीनिक आर्टरी, इसी स्प्लीनिक वेन के साथ जा मिलता है, जो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि फिर थोड़ा फिर कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इसी गैस्ट्रिक से, इसी स्टोमिक से बहुत सारे ब्लड वेसल एराइज हो गए हैं। कुछ डायरेक्टली इसी पोर्टल वेन से मिलते हैं, और कुछ सिस्टिक वेन से, कुछ डायरेक्टली पोर्टल वेन से मिलते हैं, कुछ स्प्लीनिक वेन से मिलते हैं, और कुछ जो है यहाँ पे सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन से जा मिलते हैं। तो इसलिए ये मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये आप लेक्चर में लेंगे। अच्छा, के गैस्ट्रिक वेन जो है, बहुत सारे गैस्ट्रिक वेन्स राइज हो गए हैं, जो कुछ स्प्लीनिक वेन के साथ जा मिलते हैं, कुछ हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ जा मिलते हैं, और कुछ कहाँ पे, कुछ इसी वेन के साथ जा मिलते हैं, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ जा मिलते हैं। इन दोनों के साथ नहीं जा मिलते, इन दोनों के साथ। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये है, और इसमें थोड़ा सा डिटेल से मैं बताऊंगा। देखिए, ये आपके पास हार्ट है, हार्ट से अयोटा एराइज हो गया है, इसी अयोटा से बहुत सारे आर्टरीज एराइज हो गए हैं, जो रेड कलर में मैंने बनाए हैं, सुपीरियर मेजेंटेरिक, इंफीरियर मेजेंटेरिक। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया हुआ है, ये सारे वेन्स हैं, ये ब्लैक कलर में मैंने बनाए हुए। ये ब्लड ड्रेन करती है और कहाँ पे जा मिलती है? इसी चीज के साथ जा मिलती है। दिस इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ जा मिलती है। ये भी हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ जा मिलती है, राइट ब्रांच ऑफ द हेपेटिक पोर्टल वेन। अच्छा, तो ये सारे यहाँ पे जा मिलते हैं, और फिर लीवर से
लीवर में जब ये चले जाते हैं तो लीवर से ब्लड ड्रेन होता है कहाँ पे? ये आपके पास लीवर है और ये आपके पास हार्ट है, तो लीवर से जो ब्लड ड्रेन हो गया है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हेपेटिक वेन। दीज आर कॉल्ड हेपेटिक वेन्स। हेपेटिक वेन्स वो है जो डायरेक्टली लीवर से ब्लड ड्रेन करती है। कहाँ पे ड्रेन करती है? इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है कहाँ पे? आपके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। अच्छा, तो इसी स्लाइड में इजाफा ये हो गया कि यहाँ पे लीवर से ये ब्लड वेसल एराइज हो गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल हेपेटिक वेन। और दो वेन एराइज हो गए हैं, टू हेपेटिक वेन्स एराइज फ्रॉम द लीवर which is connected with the inferior vena cava, and inferior vena cava goes to the right atrium of the heart. अच्छा, तो यहाँ पे अभी आप स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन और हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। सिरे में मैंने इसलिए हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की डिफिनीशन नहीं की क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अभी आप समझ ले और कंसंट्रेट कर ले इसी डिफिनीशन पे। देखे ये जो स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन है, जो मैंने बताया, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट to the visceral organs of the body, and from the visceral organ of the body to the liver, from the liver to the back to the heart is called splanchnic circulation. लेकिन अगर हम हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की बात कर ले तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में हम इसी आर्टरी को स्किप करेंगे, इसी आर्टरी को हम स्किप करेंगे। उसकी डिफिनीशन हम यू लिखेंगे कि द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द विस्ट्रल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सारे विस्ट्रल ऑर्गन है ना, टू द विस्ट्रल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द विस्ट्रल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, excluding the which one? To excluding the hepatic artery, excluding the hepatic artery, and from the liver back to the heart, that is called hepatic portal circulation. Now you can see that the circulation of blood from the heart to the visceral organs of the body, excluding the hepatic artery. ठीक हो गया? To the visceral organs of the body, excluding the liver. ठीक हो गया? Excluding the hepatic artery. And from the liver back to the heart, that is called hepatic portal circulation. अगर आप इसी सर्कुलेशन में इसी ब्लड वेसल को इंक्लूड करेंगे तो ये फिर स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन होगी। ठीक हो गया? अगर आप इसको एक्सक्लूड कर ले तो फिर ये हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन होगी। तो यहाँ पे आप मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूँ आपके लिए, स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन and hepatic portal circulation. अच्छा, स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है। स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन में फर्क ये है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल बना लूँ। स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन इज द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन plus aerial circulation to the liver. हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन प्लस एरियल सर्कुलेशन टू द लिवर। यहाँ पे ये पूरा ये हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है। ये जो मैंने बनाया हुआ है, किस कलर में, ये सारे इसके अलावा ये एरियल सर्कुलेशन टू द लीवर है, ये डायरेक्ट सर्कुलेशन टू द लीवर है। ठीक हो गया? ये एरियल सर्कुलेशन टू द लीवर है और इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं ये सारा हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में आता है। तो इसको एक्सक्लूड करके हम इसको हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, इसको इंक्लूड करके इसको हम स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन बोलते हैं। और हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन विसरल ऑर्गन से ब्लड का, यहाँ पे भी मैं छोटा बना दूं इसको, फ्रॉम द हार्ट
to the visceral organs excluding hepatic artery. From the visceral organs to the liver, and from the liver back to the heart. तो यहाँ पे डिफिनेशन कंप्लीट करते हैं. द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड from the heart to the visceral organ excluding the hepatic artery, and from the visceral organs to the liver. फिर से देखें यहाँ पे, the circulation of blood from the heart to the visceral organ excluding the hepatic artery, from the visceral organ to the liver, and from the liver back to the heart. This is what we call hepatic portal circulation. और splanchnic circulation क्या है? Splanchnic circulation is the circulation of the hepatic portal circulation plus aerial circulation to the liver. Simple. ठीक हो गया. ये सारा डिफिनीशन जो है यहाँ पे आप हेपेटिक स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द विसरल ऑर्गन्स, फ्रॉम द विसरल ऑर्गन्स टू द, यहाँ पे इसी चीज को आप हटा के एक्सक्लूडिंग द हेपेटिक आर्टरी, इसको आप हटा के यहाँ पे स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन में आप लिख सकते हैं. इसको आप यहाँ से हटा दें, यहाँ से मैंने ये हटा दिया. तो अभी ये क्या हो गया? अभी ये आपके पास हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन नहीं हो गया, अभी ये आपके पास स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन हो गया. ठीक हो गया. यहाँ पे ये अभी आपके पास स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द विसरल ऑर्गन, फ्रॉम द विसरल ऑर्गन टू द लीवर, एंड फ्रॉम द लीवर बैक टू द हार्ट. दिस इज व्हाट वी कॉल स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन. ठीक हो गया. तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको बता दूं ये क्यों इस तरह होता है. देखिए, ये जो ब्लड वेसल एराइज हो गए हैं आपके मुख्तलिफ ऑर्गन से, स्पेशली फ्रॉम द गैस्ट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन और पेंक्रियाटिक वेन, ये सारे वेन ये ब्लड कहाँ से ड्रेन करते हैं? ये मेजरली फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से ये ब्लड ड्रेन करते हैं. कहाँ पे ड्रेन करते हैं? अच्छा, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ब्लड कहाँ से आता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ब्लड लीवर से, ब्लड ऑब्वियसली हार्ट से आता है, लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है जिसमें हमारे पास शामिल है यहाँ पे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है. कहाँ से? उसमें एब्जॉर्प्शन होता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से, हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे स्टोमक से. ठीक हो गया. स्टोमक और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो इन्हीं कैपिलरीज में होता है, और वो एब्जॉर्प्शन जब इन्हीं कैपिलरीज में होता है तो वो इन्हीं वेन के जरिए हेपेटिक पोर्टल वेन में चला जाता है. वो इन्हीं वेन के जरिए हेपेटिक पोर्टल वेन में चली जाती है. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल भी होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं. जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस डायरेक्टली उसको अगर हम हार्ट ले जाएं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा. दिस इज व्हाट वी कॉल द ब्यूटी ऑफ गॉड के अल्लाह ने यहाँ पे उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यहाँ पे लीवर बनाया हुआ है कि सबसे पहले ये सारे इंटेस्टाइन से और स्टोमक से जितना भी ब्लड ड्रेन हो सके वो ब्लड सबसे पहले यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन उसकी हो जाए. यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए ये सबसे पहले आपके लीवर में चला जाए. तो लीवर में इसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं तो वो माइक्रोब्स की इनगल्फिंग होती है, फेगोसाइटोसिस उसकी होती है, कफर सेल्स यहाँ पे होते हैं जिसके जरिए फेगोसाइटोसिस उनकी होती है. इसमें जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म होती है. इसके अलावा इसमें जितने भी ग्लूकोज होते हैं तो वो सारे ग्लूकोज यहाँ पे लीवर में हेपेटोसाइट्स के जरिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये है
ये जो स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन है या हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, इसका इसका मेजर एप्लीकेशन ये है कि इसमें ये डू नॉट अलाउ द ब्लड डायरेक्टली टू द हार्ट, इट डू नॉट अलाउ द ब्लड टू गो डायरेक्टली टू द हार्ट। ये डायरेक्टली इसको हार्ट में नहीं जाने देता, क्योंकि इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, इसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यहाँ पे लीवर है, तो सबसे पहले ये लीवर में जाएगा और लीवर से फिर जाएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, हार्ट से फिर जो है आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, फिर आपके हार्ट में वापस आएगा, फिर दूसरे हर एक आर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन में मेजर सर्कुलेशन जो है आपका हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन और आपके बॉडी नॉर्मलाइजेशन के लिए, और आप होम्योस्टेसिस भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो आज के लेक्चर में जितने भी सवालात हैं वो अपने साथ नोट कर ले, इंशाल्लाह फिर मिल के वो सारे सवालात, उन सारे सवालात का जवाब मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा।